ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਕਲਾਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਸਪੀਡ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਸਪੀਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡ੍ਰਿਫਟ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -4 ਟੂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। मैं भी इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -4 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -4 ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਡ੍ਰਿਫਟ ਸਪੀਡ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -4 ਆ ਜਾਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਆ। ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਥਰਮਲ ਸਪੀਡ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਤੇ ਜਾਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਥਰਮਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਵਾ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਈਟ ਰਕਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਐਵਰੇਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਸਪੀਡ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਆ, 0 ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਆ, ਡ੍ਰਿਫਟ ਸਪੀਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ V ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ A, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, A ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੀ L, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ L ਆ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਏ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਵਿੰਗ ਲੈਂਥ L ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ A is in the circuit with battery V ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ A, ਤੇ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ, L ਆ, ਛੋਟੀ L ਲੈ ਲਓ, ਲੈਂਥ L ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ N ਕੀ ਆ, N is the number of electron per unit volume,
मतलब कि ये जिहड़ा कंडक्टर वा ना इहदे 1 यूनिट वॉल्यूम मान लो इहदा 1 यूनिट वॉल्यूम इन्ना का ते इहदे 1 यूनिट वॉल्यूम दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन आ n वा। हुण देखो जेकर इहदे 1 यूनिट वॉल्यूम दे विच n इलैक्ट्रॉन होणगे ते इह पूरे दे विच किन्ने होणगे पूरे दे विच असीं कैलकुलेट कर सकदे हां क्योंकि 1 यूनिट वॉल्यूम दे विच मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम च स्मॉल n ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ n ਕੀ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਕੰਡਕਟਰ कंडक्टर दे विच टोटल इलैक्ट्रॉन किन्ने होणगे मैं कह दिंदा कि मान लो टोटल इलैक्ट्रॉन हैगे आ n पर किहदे बराबर होने आ 1 यूनिट वॉल्यूम दे विच छोटा n ते इहदा वॉल्यूम पूरे दा वॉल्यूम जिहड़ा वा मल्टीप्लाई कर दो वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ते मैनूं पता वा इहदा वॉल्यूम की आ n इंटू a इंटू l मतलब एरिया इंटू लेंथ सानू पता वा कि एरिया इंटू लेंथ इहदा की बनेगा वॉल्यूम बनेगा। सो मेरे कोलों 1 नंबर इक्वेशन बन गई कि इस कोलों टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन किन्ने आ। हुण देखो मैं पता करना चाहुंदा वां कि इहदे उत्ते टोटल चार्ज किन्ना वा मतलब जिन्ने इहदे कोल इलैक्ट्रॉन आ ना उन्हां सारियां दे उपर चार्ज किन्ना वा ते मैनूं पता वा कि 1 इलैक्ट्रॉन ते किन्ना चार्ज हुंदा वा -e ते जे मैं पुछां टोटल चार्ज ऑन n इलैक्ट्रॉन कितना होएगा n इलैक्ट्रॉन दे उपर मतलब इहदे अंदर आपां क्या ना टोटल n इलैक्ट्रॉन आ ते 1 यूनिट वॉल्यूम च कितना वा स्मॉल n ते टोटल चार्ज n इलैक्ट्रॉन ते कितना होएगा मैनूं पता वा कि 1 ते कितना हुंदा वा मैं इहनूं Q कह दिंदा कि टोटल चार्ज मान लो Q आ 1 ते कितना हुंदा -e ते टोटल किन्ने आ n ठीक आ। हुण देखो इस n की वैल्यू मैं 1 तो बाहर दिना मेरे को की आया -e n a ते l ए Q की मेरे को इक्वेशन आ गई कि इहदे अंदर चार्ज किन्ना वा इस कंडक्टर दे अंदर जिहड़े इलैक्ट्रॉन आ उन्हां सारियां दे उपर किन्ना चार्ज वा मेरे को 2 नंबर इक्वेशन आ गई। हुण देखो मैं अजिहा कर क्यों रहा वां मैं क्यों कर रहा वां कि इहदी लेंथ जिहड़ी आ l वा इहदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन a आ ते इहदे कोलों जिहड़ी चार्ज डेंसिटी आ जां इलैक्ट्रॉन डेंसिटी आ वो किन्नी आ स्मॉल n आ। मैं इस करके कर रहा वां देखो क्योंकि मैनूं पता वा करंट की इक्वेशन की हुंदी आ करंट की इक्वेशन हुंदी आ I = Q/T ते मैं इस कंडक्टर दे विच किन्ना चार्ज वा Q मैं कैलकुलेट कर चुका वां ते हुण मैं देखदा वां टाइम कि इस चार्ज नूं मतलब जदों इलैक्ट्रॉन मूव करनगे ते उन्नूं किन्ना टाइम लगेगा इस L लेंथ के कंडक्टर नूं पास करन लग्या। हुण आपां ये देखते हैं मेरा मूल रूप विच मेरे दिमाग दे विच यह इक्वेशन सी जदों मैं इस आर्टिकल नूं शुरू करना सी क्योंकि मैं करंट दा ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी दा रिलेशन पता करना वा ते मैनूं पता वा कि जिहड़ी मैं अजे तक करंट की इक्वेशन पढ़ी आ वो की आ टोटल चार्ज ते टाइम उहदी की आ डिवीजन आ ते मैं टोटल चार्ज इस कंडक्टर दे अंदर पता कर लिया। मैं पता किद्दां कीता मैं उहदे एरिया की भाषा च कीता लेंथ की भाषा च कीता ते इलैक्ट्रॉन डेंसिटी की भाषा च कीता ते चार्ज ऑफ इलैक्ट्रॉन की भाषा दे विच कीता। हुण देखो कोई भी सैंपल आ ना कोई भी मैटल आ जां कोई भी कंडक्टर वा उहदे विच जिहड़ा छोटा n वा ना वो हमेशा कॉन्सटेंट हुंदा वा मतलब नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये की आ ये कॉन्सटेंट आ ते साडे कोलों n आ गया। हुण देखो मैं इस इक्वेशन नूं हुण आधार बनाउण लगा मैं लिखण लगा कि वी नो करंट की हुंदा वा I = Q/T हुंदा ते Q मैं 2 नंबर तो कढ लिया। सो आवर टास्क टू फाइंड T आवर टास्क फाइंड T फाइंड आउट करो जे T फाइंड आउट हो जाए तो I वाली इक्वेशन च भरांगे। हुण T आपां किवें कढ सकदे हां T दी साडे कोलों एक बेसिक इक्वेशन आ T नूं पता करन दी किहड़ी आ सानू पता वा कि वेलोसिटी की हुंदी आ वेलोसिटी हुंदी आ डिस्टेंस अपॉन टाइम ये साडे कोल बेसिक इक्वेशन आ वेलोसिटी जां डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जां डिस्टेंस अपॉन टाइम आ
तो मैं इत्थों लिख लेना वा कि टाइम की आ, टाइम हैगा ये इत्थे चल जाएगा डिस्टेंस किन्नी आ, डिस्टेंस किन्नी कवर करनी आ, एल कवर करनी आ, एल ओवर नीचे की आ जाएगा वी डी। ए वाली इक्वेशन आ गई मेरे को 4 नंबर। हुण देखो मैं 2 नंबर 3 नंबर ते 4 नंबर इन्हां नूं की कर देण लगा वा, इकट्ठा कर देण लगा वा, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 3 and 4। 2 नंबर च क्यू दी वैल्यू आ, 3 नंबर बेसिक इक्वेशन आ, असल दे विच मैं 3 नंबर दे विच वैल्यू भरन लगा वा 2 नंबर ते 4 नंबर दे विचों। जदों मैं 3 नंबर दे विच 2 नंबर ते 4 नंबर तो वैल्यू भरांगा तो मेरे कोलों की आउणा वा, मेरे कोलों 3 नंबर वाली इक्वेशन आ जानी आ 3 इंप्लाइज की बन जाएगी आई इज इक्वल टू क्यू कितना वा उपर माइनस ई एन ए एल। ए वाली इक्वेशन आ गई। तो टी की वैल्यू कितनी आ एल अपॉन वी डी, नीचे की आया एल अपॉन वी डी। हुण देखो इनू जे तुसी सॉल्व करोगे तो एल नाल एल कट्टिया जाना तो इक्वेशन की बननी आ माइनस ई, पहला की आ माइनस ई आ, ये की आ एल वा लेंथ ऑफ कंडक्टर वा, ये भी लेंथ ऑफ कंडक्टर आ, माइनस ई एन ए ते ए वी डी उपर जाएगी वी डी। हुण देखो ये बहुत महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ, आई इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ करंट दी। तो जेकर मैं ये वी डी की वैल्यू भरदा, वी डी की वैल्यू मेरे को कल कितनी आई सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, सानू पता है कि साडे कोलों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आई सी माइनस ई अपॉन एम ई ते टॉ। जेकर मैं ये वी डी की वैल्यू ये भरदा तो मेरे को एक नवी इक्वेशन बन जाएगी आई इज इक्वल टू माइनस ई एन ए, उधरों की आया साडे कोलों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तुसी सॉल्व कर लेना ई स्केयर आ जाएगा तो इत्थे की आएगा ई बटा एम टॉ, मेरे कोलों ए वाली वैल्यू आएगी। इत्थे एक गल जरूर याद रखो, इत्थे की आ देखो आ जिहड़ा नैगेटिव साइन आ इहदा की मतलब आ, साडे कोलों करंट दी इक्वेशन दे विच नैगेटिव साइन क्यों आया, नैगेटिव साइन सानू की रिप्रजेंट करदा वा, इत्थे सानू नैगेटिव साइन ये रिप्रजेंट करदा वा कि जिहड़ी करंट दी डायरैक्शन आ ते इलैक्ट्रॉन दी डायरैक्शन आ वो की आ ओपोजिट आ। जिवें असीं कहने आ कि यह पॉजिटिव टर्मीनल आ, सानू पता वा कि इलैक्ट्रॉन दा मोशन किधर नूं आ, इलैक्ट्रॉन दा मोशन इधर नूं आ, पर जनरल असी की करते हैं, जनरल असी पॉजिटिव चार्ज की गल करते हैं, करंट दे विच असी कहने आ कि करंट किधरों किधर फ्लो करता वा, असी कहने आ करंट पॉजिटिव टर्मीनल तो नैगेटिव टर्मीनल वाल फ्लो करता वा करंट। असी पॉजिटिव नूं लैके सोचते हैं, मेरे कहने का मतलब आ कि यह जिहड़ा नैगेटिव साइन आ ये सानू की रिप्रजेंट कर रहा वा, नैगेटिव साइन सानू ये दस रहा वा कि इलैक्ट्रॉन्स दा मोशन ते करंट दा मोशन ओपोजिट आ। मेरे कहने का मतलब ये आ जिद्दां असीं जनरल कहने आ ना कि इलैक्ट्रॉन दा मोशन इस केस दे विच पॉजिटिव टर्मीनल वाल होएगा, इधर नूं होएगा, ठीक आ। पर जेकर असीं करंट की गल करिए ना तो करंट असीं कहने आ कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मीनल तो नैगेटिव टर्मीनल वाल जांदा वा, पर जांदा असल दे विच की आ, जांदा असल दे विच इलैक्ट्रॉन्स आ, इलैक्ट्रॉन किधरों किधर जांदे आ, इलैक्ट्रॉन जांदे आ नैगेटिव तो पॉजिटिव दे वल। पर असीं हमेशा ये गल ही कहने आ कि जिहड़ा करंट वा वो की आ पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल जांदा वा ते उसे लाइन नूं ये रिप्रजेंट करदा वा। हुण देखो असीं इदां क्यों कहने आ कि करंट पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल मूव करदा वा, जिवें असीं कहिए कि यह पॉजिटिव टर्मीनल सी, करंट इत्थों निकलिया इधर नूं गया, बाद विच इस कंडक्टर दे राही हुंदा होया इस नैगेटिव टर्मीनल राही अंदर चले जाएगा। क्योंकि जदों भी असीं कोई गल करदे ना तो असीं पॉजिटिव नूं लैके करदे आ, असीं इलैक्ट्रॉन की आ नैगेटिव चार्ज आ, असीं पॉजिटिव नूं लैके गल करदे आ। बेशक जेकर असीं इदां भी कहिए कि नैगेटिव चार्ज जिहड़ा वा वो नैगेटिव तो पॉजिटिव वाल आउंदा वा, ते जदों नैगेटिव चार्ज जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आ नैगेटिव तो पॉजिटिव वाल आएगा उस समय दौरान जिहड़ा पॉजिटिव आ वो किधरों किधर नूं मूव होएगा, पॉजिटिव टर्मीनल तो नैगेटिव टर्मीनल वाल मूव होएगा। सो ये गल हमेशा दिमाग दे विच रखनी कि जदों भी असीं एक करंट की गल करांगे ना तो असीं करंट हमेशा इदां मन्नांगे कि पॉजिटिव टर्मीनल तो नैगेटिव टर्मीनल वाल जांदा वा।
पर असल दे विच की जांदा वा, असल 'च मूवमेंट किहदी आ, चार्ज कैरीयर कौन आ, सानू पता चार्ज कैरीयर कौन आ, इलैक्ट्रॉन आ। ते असल दे विच हो की रिहा वा कि इलैक्ट्रॉन नैगेटिव टर्मीनल तो पॉजिटिव टर्मीनल वल मूव करदे आ। ते ये जिहड़ी नैगेटिव साइन आ ये सानू इहो दस रिहा वा कि जिहड़ा करंट वा ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जिहड़ी इन्हां दी डायरैक्शन ओपोजिट आ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी डायरैक्शन पॉजिटिव दे वल वा ते करंट दी डायरैक्शन पॉजिटिव तो नैगेटिव दे वल वा। ये साडी जिहड़ी आ इक्वेशन आ करंट दी ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ, इनू बहुत ध्यान नाल कीता जावे। देखदे आ कि जदों असीं बैटरी लगाउने आ ते ये इलैक्ट्रॉन फ्लो क्यों हुंदे आ, जां मैं ये आर्टिकल कहां कि वाई इलैक्ट्रिक करंट फ्लो, इलैक्ट्रिक करंट फ्लो हुंदा क्यों आ। आपां नूं ये जानना बहुत जरूरी आ कि तुसीं बैटरी लगाई तो करंट किद्दां फ्लो हो गया, मतलब इनू जरूरत की आ फ्लो होण दी। जे मैं कहां कि हुणे डायग्राम बनाई सी कि इत्थे की आ, एक मेरे कोलों कंडक्टर वा ते आपां इनू की कीता, बैटरी दे नाल लगाता पॉजिटिव ते नैगेटिव। ते सानू पता वा कि इहदे विच की होना वा, इहदे विच इलैक्ट्रॉन्स दा मोशन जिहड़ा वा वो किधर नूं होना, इस डायरैक्शन नूं होना। पर असीं करंट किधर नूं कहना वा, जदों असीं गल करनी ना करंट किधरों किधर फ्लो हो रहा वा ते असीं करंट दी गल करनी आ कि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नैगेटिव टर्मीनल वल फ्लो हो रहा वा। ते इलैक्ट्रॉन किधरों किधर फ्लो हो रहा, इलैक्ट्रॉन हमेशा नैगेटिव टू पॉजिटिव। हुण देखो आपां इस मैकेनिज्म नूं समझण दी कोशिश करदे हां कि इलैक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों हुंदा वा। आपां कहने आ कि इस बैटरी ने की कीता कि जिहड़े इहदे विच इलैक्ट्रॉन आ उन्हां उत्ते फोर्स लगाई ते फोर्स लगा के अपने वल खिच ले। हुण देखो मैं ये गल कही आ कि बैटरी दे पॉजिटिव टर्मीनल ने इहदे फ्री इलैक्ट्रॉन ते फोर्स लाई ते फोर्स ला के अपने वल खिच ले। हुण देखो इहदा मतलब इस बैटरी का प्रभाव इहदे अंदर बनिया तां ही तो इलैक्ट्रॉन इहदे वल खिच्चे गए। पर आपां एक कॉन्सैप्ट पढ़िया सी गॉस थ्योरम दे विच, आपां गॉस थ्योरम दे विच ये चीज़ पढ़ी सी कि किसी भी मैटल दे अंदर जां किसी भी कंडक्टर दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो हुंदा। ते जे ये कंडक्टर वा ते इहदे अंदर ते फिर इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो इलैक्ट्रिक फील्ड जे जीरो वा, इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब की आ कि इहदे अंदर बैटरी की कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये आ कि एक पासे ते आपां ये गल कहने आ कि इस पॉजिटिव ने की कीता, इस कंडक्टर दे अंदर फोर्स लगाई ते फोर्स लगा के इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ वो अपने वल खिच्चे। ते दूजे पासे गॉस थ्योरम दे विच असीं ये गल कहने आ कि बाहरले फील्ड का मैटल दे अंदर कोई प्रभाव नहीं पैंदा। मैटल दे अंदर जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड आ वो की हुंदा वा जीरो आ। ते जे मैटल दे अंदर जे आपां मन्नीए कि इहदे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो आ, मतलब बाहरले फील्ड का कोई प्रभाव ही नहीं आ, इस बैटरी का कोई प्रभाव ही नहीं आ, तो फिर तो ये इलैक्ट्रॉन खिंच ही नहीं सकता, फिर तो इलैक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं हो सकते। हुण ये इलैक्ट्रॉन फ्लो हो किवें रहे आ, ये तो दो गल्लां हो गई ना कि एक पासे तुसीं कही जा रहे जो कि बैटरी दे पॉजिटिव टर्मीनल ने फोर्स लगा ली, क्योंकि बैटरी ने की करना वा, इहदे अक्रॉस फील्ड क्रिएट करना वा। किद्दां दा फील्ड क्रिएट करना, देखो जिवें यह कंडक्टर वा, बैटरी दे पॉजिटिव ने की करना वा, इधर पॉजिटिव ते इधर नैगेटिव फील्ड क्रिएट कर देना वा। ते असी कहने आ कि इस फील्ड ने इहदे इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ मूव कराते, इलैक्ट्रॉन मूव कराते। हुण इलैक्ट्रॉन ते तां ही मूव होए आ जे अंदर फील्ड ने फोर्स लगाई आ, मतलब फोर्स दी एग्जिस्टेंस अंदर हैगी आ, प्रेजेंस हैगी आ अंदर। पर गॉस थ्योरम सानू कहंदी आ, बट गॉस थ्योरम की कह रही आ, गॉस चैलेंज खड़ा कर रहा है इत्थे। गॉस कहंदा वा कि किसी भी मैटल किसी भी कंडक्टर दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो हुंदा वा, ते जे इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो हुंदा ते इहदा मतलब बाहरला फील्ड उहदे अंदर फोर्स लगा ही नहीं सकदा। ते इत्थे किद्दां हो गया, इत्थे किद्दां हो गया कि बाहरली बैटरी ने फील्ड बना के इहदे इलैक्ट्रॉन्स नूं अपने वल खिच लिया।
देखो इत्थे कारण की आ, ला कोई भी या निज़म कोई भी गलत नहीं हैगा, गॉस भी गलत नहीं आ ते इलैक्ट्रॉन का मोशन भी गलत नहीं आ। जदों ये वाला जिहड़ी कंडक्टर वा ना, जदों असीं बैटरी दे नाल लगाउने आ ते बैटरी की करदी आ, बैटरी इहदे आले दुआले की करदी आ, पॉजिटिव नैगेटिव फील्ड क्रिएट करदी आ। हुण ये कंडक्टर की करदा वा, ये कंडक्टर अपने इलैक्ट्रॉन्स नूं कहंदा वा कि पॉजिटिव दे वल जाओ, पॉजिटिव दे वल जाओ। पॉजिटिव दे वल क्यों जाओ? पॉजिटिव दे वल तां करके जाओ क्योंकि इस तरीके की स्थिति बने कि इत्थे इलैक्ट्रॉन आ जाण ते पिछे पॉजिटिव चार्ज रह जाए ते अंदर की आ, बाहरले फील्ड के मुकाबले अंदर एक ओपोजिट फील्ड बन जाए सेम स्ट्रेंथ का। इस कंडक्टर ने घलाए तो इस करके सी पॉजिटिव टर्मीनल वाल इलैक्ट्रॉन कि उधर चले जाओ, पिछे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा तो अंदर फील्ड बन जाएगा। तो हुण अंदर फील्ड बन जूगा तो बाहरला फील्ड जिहड़ा बैटरी दा वा वो की हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पर इत्थे की हुंदा वा कि जदों इलैक्ट्रॉन इत्थे पहुँचते हैं ना तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मीनल इन्हां नूं अगे खिंच लैंदा, तो जदों अगे खिंच लैंदा वा ना उस टाइम ते इधरों इलैक्ट्रॉन अंदर वाड़ दिंदा। ये मैकेनिज्म हो रही आ, मतलब पहला की सी, पहला ये इलैक्ट्रॉन भज के आए, जिवें मैं इत्थे समझाउणा वा कि ए पॉजिटिव ते नैगेटिव प्लेट लगाई। हुण अंदर की आ, मैटल आ, मैटल की करदी हुंदी आ, मैटल ने अपने सारे इलैक्ट्रॉन इत्थे खड़े कर देने आ ते पॉजिटिव चार्ज इत्थे खड़ा कर देना ते ओपोजिट फील्ड बना देना। इस तरीके नाल बाहरला फील्ड किद्दां वा, पॉजिटिव टू नैगेटिव एक्सटर्नल, ते इंटरनल किद्दां दा वा, ओपोजिट बनना वा। पर इत्थे की हो रहा वा, इत्थे इलैक्ट्रॉन्स नूं मीडियम मिल रहा वा। इलैक्ट्रोस्टैटिक दे विच गॉस थ्योरम दे विच मीडियम नहीं सी मिल रहा, इत्थे इलैक्ट्रॉन्स नूं मीडियम मिल गया। मीडियम किद्दां मिलिया कि इलैक्ट्रॉन जदों इत्थे आए ना उस वेले पॉजिटिव टर्मीनल ने इलैक्ट्रॉन अपने वल खिंच लए। हुण जदों इलैक्ट्रॉन अपने वल खिंच लए तो नैगेटिव टर्मीनल राही इलैक्ट्रॉन अंदर दाखल हो गए। इस तरीके नाल हुंदा कि जेकर इधरों 1 सैकेंड दे विच एक इलैक्ट्रॉन बाहर आ रहा वा तो इधरों 1 सैकेंड दे विच एक इलैक्ट्रॉन अंदर भी जाएगा। मतलब जिन्ने इलैक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मीनल अपने वाल खिंचेगा उन्ने ही इलैक्ट्रॉन जेड़े आ सेम टाइम ते नैगेटिव टर्मीनल इस कंडक्टर दे अंदर पा देगा पिछों दी। क्योंकि जे नहीं पाएगा, आपां इदां मन्नीए कि इन्हें इलैक्ट्रॉन कढ ले तो जे इन्हें इलैक्ट्रॉन कढे इधरों इलैक्ट्रॉन्स का फ्लो ही नहीं होया, फिर तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होना, फिर तो आपां कह ही नहीं सकते करंट बनिया वा। तो दूजी गल ये आ, फिर इस कंडक्टर ने की हो जाना वा, इलैक्ट्रिकली चार्ज हो जाना, क्योंकि इहदे विच्चों इलैक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो जे इलैक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाना, फिर तो कंडक्टर चार्ज हो जाना। किसी भी जदों आपां सर्किट दे विच कोई कंडक्टर लगाउने आ ना तो वो इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल हुंदा वा। क्यों इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल हुंदा वा? क्योंकि जिन्ने इलैक्ट्रॉन बाहर निकलने आ उन्ने ही इलैक्ट्रॉन इहदे अंदर जिहड़े आ वो दाखल होने आ। मैं शुरू च भी कहा सी कि ये करंट की आ, ये करंट साइकिल की चेन वांग आ। ते बैटरी की आ, बैटरी साडी एक हिसाब की मोटर वा जां EMF सोर्स आ जां एनर्जी सोर्स वा। इन्हें की करना हुंदा वा, इलैक्ट्रॉन्स दा मोशन कराउणा हुंदा वा। इन्हें इधरों की करना वा, इधरों इलैक्ट्रॉन्स नूं धक्कना वा कि इधर अंदर दाखल हो जाओ ते इधर बाहर निकल जाओ। सानू पता इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री असीं पढ़िया भी होया कि इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े आ वो इसे तरीके नाल मूव करते आ। सो मेरा मेन क्वेश्चन जिहड़ा सी, मेरा मेन क्वेश्चन सी कि असीं आम तौर ते कहने आ कि कंडक्टर दे अंदर ते मैटल दे अंदर जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो हुंदा वा, ते जे इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो हुंदा वा ते इहदे विच इलैक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते। पर असल च हुंदा की आ कि इत्थे भी असी वो कंडीशन लगा सकते हैं कि अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो हुंदा वा। पर किवें हुंदा वा, इस दे विच की आ कि शुरू दे विच ये अपना जिहड़ा वा इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो करन वास्ते ही तुरे सी। मतलब इलैक्ट्रॉन इधरों इधर इलैक्ट्रिक फील्ड बाहरला इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो करन वास्ते तुरे सी। पर अगे की पता सी कि बैटरी दे पॉजिटिव टर्मीनल ने अपने वल खिंच लेना, तो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मीनल ने इत्थों कड्डे तो बैटरी के टर्मीनल ने इत्थों अंदर भी दे देने आ, सो दैट कि ये जिहड़ा कंडक्टर वा इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। सो साडे ये दोनों ला होल्ड कर रहे आ। मैं आस करदा तुसीं इस गल नूं समझे होगे कि इलैक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करदा वा।
ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੋ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਫਲੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਆ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਆ, ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆ, એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਪੰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਓਮਸ ਲਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਮਸ ਲਾ